हम यहेजकेल की भविष्यवाणी एजेकियल 17, 18, 19 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, इन वचनों को हम समझ पाए, हमारी मदद करो। हम परमेश्वर पिता आपकी योजना से, आपकी सहायता से इन वचनों को सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। हमारी मदद करो। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे एजेकियल 17th चैप्टर फर्स्ट वर्स से। And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, put forth a riddle, and speak a parable unto the house of Israel. And say, Thus saith the Lord God, a great eagle with great wings, long-winged, full of feathers, which had divers colors, came unto Lebanon, and took the highest branch of the cedar. He cropped off the top of his young twigs and carried it into a land of traffic. He set it in a city of merchants. He took also of the seed of the land and planted it in a fruitful field. He placed it by great waters and set it as a willow tree. And it grew and became a spreading vine of low stature, whose branches turned toward him, and the roots thereof were under him. So it became a vine, and brought forth branches, and shot forth sprigs. There was also another great eagle with great wings and many feathers. And behold, this vine did bend her roots toward him, and shot forth her branches toward him, that he might water it by the furrows of her plantation. It was planted in a good soil by great waters, that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine. Say thou, Thus saith the Lord God, shall it prosper? Shall he not pull up the roots thereof, and cut off the fruit thereof, that it wither? It shall wither in all the leaves of her spring, even without great power or many people to pluck it up by the roots thereof. Yea, behold, being planted shall it prosper? Shall it not utterly wither? When the east wind toucheth it, it shall wither in the furrows where it grew. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Say now to the rebellious house, Know ye not what these things mean? Tell them, Behold, the king of Babylon is come to Jerusalem, and hath taken the king thereof and the princes thereof, and led them with him to Babylon, and hath taken of the king's seed, and made a covenant with him, and hath taken an oath of him. He hath also taken the mighty of the land, that the kingdom might be base, that it might not lift itself up, but that by keeping of his covenant it might stand. But he rebelled against him in sending his ambassadors into Egypt, that they might give him horses and much people. Shall he prosper? Shall he escape that doeth such things? Or shall he break the covenant and be delivered? As I live, saith the Lord God, surely in the place where the king dwelleth, that made him king, whose oath is he despised, and whose covenant he brake even with him in the midst of Babylon, he shall die. Neither shall Pharaoh with his mighty army and great company make for him in the war, by casting up mounds and building forts to cut off many persons.
seeing he despised the oath by breaking the covenant, when lo, he had given his hand and hath done all these things, he shall not escape. Therefore, thus saith the Lord God, as I live, surely mine oath that he hath despised, and my covenant that he hath broken, even it will I recompense upon his own head. And I will spread my net upon him, and he shall be taken in my snare, and I will bring him to Babylon, and will plead with him there for his trespass that he had trespassed against me. And all his fugitives with all his bands shall fall by the sword, and they that remain shall be scattered toward all winds. And ye shall know that I, the Lord, have spoken it. Thus saith the Lord God, I will also take off the highest branch of the high cedar, and will set it. I will crop off from the top of his young twigs a tender one, and will plant it upon an high mountain and eminent. In the mountain of the height of Israel will I plant it, and it shall bring forth boughs and bear fruit, and be a goodly cedar, and under it shall dwell all fowl of every wing. In the shadow of the branches thereof shall they dwell. And all the trees of the field shall know that I, the Lord, have brought down the high tree, have exalted the low tree, have dried up the green tree, and have made the dry tree to flourish. I, the Lord, have spoken and have done it. 18th chapter, first verse. The word of the Lord came unto me again, saying, What mean ye that ye use this proverb concerning the land of Israel, saying, The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge? As I live, saith the Lord God, ye shall not have occasion any more to use this proverb in Israel. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father. So also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. But if a man be just, and do that which is lawful and right, and hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, neither hath defiled his neighbor's wife, neither hath come near to a menstruous woman, and hath not oppressed any, but hath restored to the debtor his pledge, hath spoiled none by violence, hath given his bread to the hungry, and hath covered the naked with a garment, he that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between man and man, hath walked in my statutes, and hath kept my judgments to deal truly, he is just. He shall surely live, saith the Lord God. If he beget a son that is a robber, a shedder of blood, and that doeth the like to any one of these things, and that doeth not any of those duties, but even hath eaten upon the mountains, and defiled his neighbor's wife, hath oppressed the poor and needy, hath spoiled by violence, hath not restored the pledge, and hath lifted up his eyes to the idols, hath committed abomination, hath given forth upon usury, and hath taken increase, shall he then live? He shall not live. He hath done all these abominations. He shall surely die. His blood shall be upon him. Now, lo, if he begat a son that seeth all his father's sins, which he hath done, and considereth, and doeth not such like, that hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, hath not defiled his neighbor's wife, neither hath oppressed any, hath not withholden the pledge, neither hath spoiled by violence, but hath given his bread to the hungry,
and hath covered the naked with a garment, that hath taken off his hand from the poor, that hath not received usury nor increase, hath executed my judgments, hath walked in my statutes, he shall not die for the iniquity of his father, he shall surely live. As for his father, because he cruelly oppressed, spoiled his brother by violence, and did that which is not good among his people, to lo, even he shall die in his iniquity. Yet say ye, why? Doeth not the Son bear the iniquity of the Father? When the Son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live. The soul that sinneth, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness that he hath done, he shall live. Yea, have I any pleasure at all that the wicked should die, saith the Lord God, and not that he should return from his ways and live? But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All this righteousness that he had done shall not be mentioned in his trespass that he had trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die. Yet ye say, the way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel, is not my way equal? Are not your ways unequal? When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them, for his iniquity that he had done shall he die? Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Because he considereth and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die. Yet saith the house of Israel, the way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? Are not your ways unequal? Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your sin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore turn yourselves and live ye. 19 chapter 1st verse. Say, moreover, take thou up a lamentation for the princes of Israel, and say, what is thy mother? A lioness. She lay down among lions. She nourished her whelps among young lions, and she brought up one of her whelps. It became a young lion, and it learned to catch the prey. It devoured men. The nations also heard of him. He was taken in their pit, and they brought him with chains unto the land of Egypt. Now, when she saw that she had waited, and her hope was lost, then she took another of her whelps, and made him a young lion. And he went up and down among the lions. He became a young lion, and learned to catch the prey, and devoured men.
And he knew their desolate palaces, and he laid waste their cities, and the land was desolate, and the fullness thereof by the noise of his roaring. Then the nations set against him on every side from the provinces, and spread their net over him. He was taken in their pit. And they put him inward in chains, and brought him to the king of Babylon. They brought him into holds, that his voice should no more be heard upon the mountains of Israel. Thy mother is like a vine in thy blood, planted by the waters. She was fruitful and full of branches by reason of many waters. And she had strong rods for the scepters of them that bare rule. And her stature was exalted among the thick branches. And she appeared in her height with the multitude of her branches. But she was plucked up in fury. She was cast down to the ground, and the east wind dried up her fruit. Her strong rods were broken, and withered. The fire consumed them. And now she is planted in the wilderness, in a dry and thirsty ground. And fire is gone out of a rod of her branches, which hath devoured her fruit, so that she hath no strong rod to be a scepter to rule. This is a lamentation, and shall be for lamentation. यहेजकेल की भविष्यवाणी हम पढ़ेंगे 17 अध्याय से 18-19 अध्याय तक। 17 अध्याय पहले वचन से अकाबों और अंगूर की लता का दृष्टांत। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह पहेली और दृष्टांत कहे। प्रभु यहोवा यूं कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी जड़ उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर एक और लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहाँ वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाए, फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। इसलिए तू यह कहे, प्रभु यहोवा यूं पूछता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उनकी जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी? वह तो जहाँ उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। फिर दृष्टांत का अर्थ 11 वचन से आगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस विद्रोह करने वाले घराने से कहे, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कहे, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और अन्य प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बेबीलोन में पहुँचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई और देश के सामर्थी पुरुषों को ले गया।
कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने से स्थिर रहे। तो भी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उससे विद्रोह किया। क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहाँ जिसने उसे राजा बनाया था अर्थात बेबीलोन में ही, वह उसके पास ही मर जाएगा। जब वे बहुत से प्राणियों का नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, इसलिए वह बचने न पाएगा। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा, मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसको बेबीलोन में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है। उसके सब दलों में से जितने भागे वे सब तलवार से मारे जाएंगे, और जो रह जाए वे चारों दिशाओं में तितर बितर हो जाएंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा 22 वचन से आगे। फिर प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसके सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इसराइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। तब वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा, और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी 18 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो, और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो। ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला न हो, और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो,
औरों को लूटा हो, बंधक न लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसा मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो, अर्थात न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वह अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित हो ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहना जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा? जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। विलाप का एक गीत, 19 अध्याय पहले वचन से। इस्राएल के प्रधानों के विषय तो यह विलाप गीत सुना। तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया,
जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। जब उसकी माँ ने देखा और वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई। तब अपने एक और बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर दिया। तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वह भी आहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया। उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़ा, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर की जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब वे उसके नकेल डालकर और कटघरे में बंद करके बेबीलोन के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसका बोल इस्राएल के पहाड़ी देश में फिर सुनाई न दे। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियाँ थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। तो भी वह जलजलाहट के साथ उखाड़ कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियाँ टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। अब वह जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई है। उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी न रही। यही विलाप गीत है और यह विलाप गीत बना रहेगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के आत्मा, आप हमारी सहायता कर रहे हो। ये वचन समझ में आना मुश्किल है खुदा। पवित्र आत्मा, जब तक आप हमको नहीं समझाएंगे हम इन वचनों को नहीं समझ सकते हैं। हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा। हमें ये वचन सिर्फ एक लिखे हुए पुस्तक के शब्द ना रहे, अगर इसमें से हमको कुछ प्राप्त करके हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए और परमेश्वर को समझने और जानने के लिए बातें हैं, तो हमें निश्चित रूप में खुदा हमें वो प्रकट कीजिए, जाहिर कीजिए और हमें इसका आनंद दीजिए और लाभ दीजिए। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीयता के रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 12 चैप्टर 42 वर्स से 50 वर्स और 1 क्रॉनिकल्स 18 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 42 वचन से 50 वचन तक। पहले इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय हम पढ़ेंगे अकेले में बैठकर। ये हमने फैसला लिया है, अकेले में बैठकर पढ़ सकते हैं हम। ओके, तो ये हम इसीलिए अकेले में बैठकर अपने व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में पढ़ना है कि हम इनके अंदर के भेद, रहस्य पर्सनली हमारे जीवन के लिए क्या कहता है परमेश्वर वो प्राप्त कर सके और उसके अनुसार हमारी पर्सनालिटी, व्यक्तिमत्व बनती जाए, ताकि हम परमेश्वर के लिए जैसा चाहिए वो चरित्र धारण कर पाए। यही होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम में मौजूद है, हमारी सहायता करता है और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।